जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं सब आप लोग? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम सर। जी हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको ठीक? यस सर, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, स्लाइड्स शो हो रही हैं बेटा? यस सर, हो रही है स्लाइड शो। जी जी मोहम्मद जाजिब। यस सर। जी बेटा, आवाज़ आ रही है आपको? स्लाइड शो हो रही है? यस सर, हो रही है शो। जी बेटा, आज का टॉपिक जो है वो सईद खान, सईद साहब। जी जी, आज का टॉपिक क्या है बेटा? कैन यू रीड फ्रॉम द टाइटल? जी वासी अहमद। यस सर। जी बेटा, आज का टॉपिक क्या है? आप रीड कर सकते हैं स्लाइड से? डिफ्यूजन विद द हेटेरोजेनियस केमिकल रिएक्शन। ओके, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। जी अब्दुल्ला सागिर। यस सर। जी बेटा, आपको जो फिगर नज़र आ रही है उस आप व्हाट डू यू गेस कि ये फिगर जो है वो किस चीज़ की है, क्या है? सर ये चीज शो कर रहा है कि गैस ए इंटर कर रही है हम्म, एक तरफ से ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और गैस ए और बी कर रही है ऑन द राइट हैंड साइड। सर ये ठीक मास है, ट्रांसफर ऑपरेशन का ठीक है, वेरी गुड। एमन अरशद। CH216। Yes, sir. जी जी बेटा, आपको इस ग्राफ में क्या शो हो रहा है? व्हाट डू यू थिंक? जी CH216B। जी आमिर, आप बताएं, आप हैंड रेज कर दें। सर हमारे पास जो गैस है वो एंटर हो रही है कैटालिटिक मटेरियल के अंदर। तो क्योंकि कैटलिस्ट के अंदर एंटर हो रही है तो हमारे पास जो बाहर निकलेगी तो इन दी फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट निकलेगी बी गैस। अब साथ कुछ इनर्ट गैस भी निकलेगी, लिहाजा ए प्लस बी दोनों गैसेस बाहर निकल रही हैं गैस ए की इंसर्ट होने से। तो हमारे ठीक है, पास स्पेसिफिक रिएक्शन हो रहा है। वेरी गुड। चलिए, let us start the lecture today. Today is our the last topic and last lecture, inshallah. So the topic is to diffusion with a heterogeneous chemical reaction. As we know, we are in the part of the mass transport and we are studying the shell mass balance. हमने चैप्टर नंबर 17 में भी थोड़ा सा स्टार्ट किया था, उसको स्टडी किया था, और चैप्टर नंबर 18 में हमने शेल मास बैलेंस किया और उसकी हमने एक एग्जांपल भी हमने पढ़ी थी कि सिंपल जो था, दैट वाज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन वाज देयर. नाउ वी विल अप्लाई द shell mass balance to a chemical reactor. And in this case, you know, there are the different chemical reactors are there. Some might be the homogeneous and some reactors are the heterogeneous. So we have considered a heterogeneous reactor, means there are more than two phases are involved, and usually this is the catalytic reactor, a fixed bed reactor in which catalyst particles are there and the reactants come on these catalyst particles. The reaction takes place at the upper surface, outer surface of the catalyst particle, and as a result the product is formed. So the reaction only occurs on the surface of the catalyst. The reaction is not going to occur throughout the whole volume of the reactor. We have already studied these things, that in a catalytic reactor the reaction only occurs at the surface of the particle. So in this graph, figure A,
a chemical reactor, fixed bed reactor is shown, in which you can see the catalyst particles like small balls. The gas A is entering at L is equal to 0, and the reaction takes place on the catalyst surface, and the product and unreacted A are leaving at the exit at L is equal to chemical L. According to the reaction, 2A is going into the B. So it means, according to the stoichiometry of the reaction, when two molecules of A enter the reactor, for each two molecule, one molecule of B produced or generated as a result of chemical reaction. So this is a simplified model of a heterogeneous chemical reactor. So what this lower diagram shows? We know the concept of boundary layer. The concept of boundary layer is not only in the straight pipeline. The concept of boundary layer is everywhere where the fluid comes in contact with the solid surface. So when this gas A will come in contact with this solid particle of a catalyst, there will be a bulk flow, but in a very close vicinity, in a very close surface, in the range of 1 millimeter or 2 millimeter, there would be a dead gas film, dead fluid film, that is called boundary layer, in which the velocity of the gas is almost equal to 0. No matter how much fast the gas is passing through the reactor, there is always a small region around this solid sphere, in which, due to the resistance of the solid surface, the velocity of the gas will be almost 0, and we call it the boundary layer, the dead layer, in which the laminar flow occurs, in which the velocity is very much lesser as compared to the bulk flow. So in this down figure, the situation of the concentration in the boundary layer is shown. First of all, the total thickness of the boundary layer is Z is equal to 0 to Z is equal to delta. So this solid surface is just a catalyst particle. This solid surface is just a catalyst particle, and we have assumed that a boundary layer of thickness delta is there around this solid surface, and the concentration in the bulk fluid is XA node and BA node. So what would happen? Actually, in order to reach to the surface of the catalyst, the particles A have to diffuse through this boundary layer. So there would be a resistance of diffusion. There would be a mass transfer, because we know that in the boundary layer there is a resistance of mass transfer, there is a resistance of heat transfer. So actually, what is the concept, what is the hypothesis, what is happening, that although there is a bulk fluid, but when the gas particles A come in contact with these catalyst particles, तो क्या होता है कि इनके ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसको हम बाउंड्री लेयर कहते हैं, और इस बाउंड्री लेयर में जो फ्लो होता है वो लैमिनार होता है, जिसमें वेलोसिटी बड़ी कम होती है, ऑलमोस्ट 0 होती है. तो जब ऑलमोस्ट 0 होती है, इट मींस के ए के मॉलिक्यूल्स को उस बाउंड्री लेयर में से डिफ्यूज करके फ्रेश कैटलिस्ट की सॉलिड सरफेस तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन कहां पर होना है? रिएक्शन तो होना है कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर, और सरफेस के ऊपर समझ लें एक रेजिस्टेंस आ गई है, एक जाल आ गया है, एक तरह की जो है वो रेजिस्टेंस आ गई है. तो अब ए के मॉलिक्यूल्स को उस बाउंड्री लेयर में से डिफ्यूज होना पड़ेगा. वो ए के मॉलिक्यूल कैटलिस्ट की फ्रेश सरफेस तक पहुंचेंगे, वहां पर फ्रेश सरफेस के ऊपर केमिकल रिएक्शन होगा, और 2A विल बी कन्वर्टेड इनटू द B. और फिर क्या होगा कि जो B के मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस होंगे उनको दोबारा उस बाउंड्री लेयर में से डिफ्यूज बैक करना पड़ेगा. ठीक है, तो A के मॉलिक्यूल जो हैं वो डिफ्यूज इन हो रहे हैं, जैसे कि आप इस फिगर में इस जगह पर देख सकते हैं कि A के मॉलिक्यूल वो शो कर रहा है कि इनसाइड टुवर्ड्स द कैटलिस्ट सरफेस जा रहे हैं, और कैटलिस्ट सरफेस के ऊपर रिएक्शन होगा जहां पर 2A इज कन्वर्टेड इनटू द B. ये रिएक्शन हो रहा है. अब B के मॉलिक्यूल जो हैं इस सरफेस में, इस फ्लूइड की जो बाउंड्री लेयर है, इसमें से डिफ्यूज करके दोबारा जो है वो बल्क फ्लो में जो है वो शामिल हो रहे हैं.
तो ये जो ए डिफ्यूज हो रहा है और बी को भी डिफ्यूज होना पड़ रहा है इस बाउंड्री लेयर में से, तो ये जो है ये बाउंड्री लेयर में से जो डिफ्यूजन होगी इट विल क्रिएट अ रेजिस्टेंस फॉर द ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, आप इस तरह समझ लें कि जाते जाते मोटरवे पे जो है ना वो ट्रैफिक आ गई आगे, और गाड़ियां जो पीछे बड़ी तेज आ रही थी उनको एकदम वहां पे स्लो होके गुजरना पड़ेगा। इसी तरह ए जो है वो पीछे से बल्क फ्लूइड में आ रहा है, लेकिन जैसे ये ए के मॉलिक्यूल बाउंड्री लेयर में आएंगे तो उनको अब इनको बड़ा स्लो होके गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी जो है वो 0 है, ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है। इस तरह सरफेस के ऊपर जब रिएक्शन होगा तो बी प्रोड्यूस होगा, तो उसको भी जो है बी को भी जो है वो बाउंड्री लेयर में से डिफ्यूज होके बैक इनटू द मेन जो टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है उसमें शामिल होना पड़ेगा। सो इस जो थिकनेस है बाउंड्री लेयर की, इस बाउंड्री लेयर की जो टोटल थिकनेस है वो डेल्टा है। सो वो जो एक्सिस को स्टार्ट कर रहा है वो अबव से स्टार्ट कर रहा है कि वो जो जहां पर बाउंड्री लेयर स्टार्ट होगी वहां पर z इज इक्वल टू 0 है, और उस बाउंड्री लेयर में से गुजर के जब हम सरफेस तक आएंगे तो सरफेस के ऊपर जो है वो z इज इक्वल टू डेल्टा, टोटल जो उसकी थिकनेस है जो हमने एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री लेयर अज्यूम की है उसकी थिकनेस जो है वो डेल्टा। नेक्स्ट इज द कंसंट्रेशन प्रोफाइल के वो जो बल्क फ्लो हो रहा है बाउंड्री लेयर से बाहर, जो बल्क फ्लो हो रहा है वहां पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ए की वो एक्स ए नोड है, और जो बी की कंसंट्रेशन है वो एक्स बी नोड है। ठीक है, तो एक्स ए नोड और एक्स बी नोड जो है वो इसकी बल्क फ्लूइड के अंदर जो है वो कंसंट्रेशन है। सो जो एक्स ए नोड जो है वो बल्क के अंदर कंसंट्रेशन है, तो जैसे ही वो ए जो है ए के मॉलिक्यूल इस लिक्विड फिल्म में एंटर होंगे, गैस की जो बाउंड्री है उसमें एंटर होंगे, तो ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो ए की कंसंट्रेशन प्रोफाइल है ये डिक्रीजिंग की तरफ जा रही है। ठीक है, ए की प्रोफाइल डिक्रीजिंग की तरफ जा रही है, और ये जो बी है जैसे जैसे हम अब बी जो होगा वो सरफेस के ऊपर मैक्सिमम होगा, क्योंकि सरफेस के ऊपर जो कैटलिस्ट की सरफेस है उसके ऊपर जो है ये बी प्रोड्यूस हो रहा है। तो जैसे जैसे बी जो है ये बाहर की तरफ मूव करेगा तो बी की कंसंट्रेशन भी जो होगी वो कम होगी। ठीक है, सो ए और बी का जो प्रोफाइल है कंसंट्रेशन का वो एक दूसरे से उलट है, एक दूसरे के रिवर्स है। ठीक है, सो ये याद रखें कि बाउंड्री लेयर में एक्स ए और बी ए का जो एरो साइन है वो इस तरफ इंक्रीज को शो कर रहा है, और जेड जो है वो इस तरफ इंक्रीज को, डाउनवर्ड जो है वो इंक्रीज को शो कर रही है। जी, यहाँ तक उम्मीद है कि जो सिनेरियो है, जो केस है, उसकी जो है वो समझ लगी होगी आपको। जी, मोहम्मद रमज़ान चौधरी साहब इधर हैं? यस सर। जी बेटा, आप थोड़ा सा इसको दोबारा रिवाइज कर सकते हो 1 मिनट के अंदर अंदर। जी तैमूर आप हैं? तैमूर, तैमूर। सर आवाज नहीं आ रही? जी बेटा आ रही है, आप बोलें बेटा, बोलें। सर जी बेटा बोलें। सर हम स्टडी कर रहे हैं डिफ्यूजन विद अ हेटेरोजेनियस केमिकल रिएक्शन। तो हमने एक सिंपल कैटालिटिक रिएक्टर कंसीडर किया है, गुड। जिसमें कोई गैस इन हो रही है और वहाँ पे रिएक्शन होता है, तो गैस और प्रोडक्ट भी हमारे पास हो रहा है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने अच्छा, आप ठीक है रमजान, वेरी गुड। अपना माइक ऑफ जहाँ पर कीजिएगा। z इज इक्वल 0 है और उसकी थिकनेस जब हो जाती है तो z इज, और हमने देखा है कि जी, इसको नेक्स्ट और कौन इसको करेगा? राफे। राफे नहीं है? अस्सलामुअलैकुम सर। सर मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ सर, सॉरी। ठीक है बेटा। अच्छा, और इधर कौन हो सकता है? वो एमन यूनस, एमन यूनस। यस सर। जी बेटा, आप थोड़ा सा ये ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगी?
यस सर। सर हमने इसमें बाउंड्री लेयर है, तो फर्स्ट वाली z इज इक्वल टू 0 एंड वो इंक्रीज हो रही है z इज इक्वल टू डेल्टा की तरफ, जो कैटालिटिक सरफेस है, और जो बल्क फ्लो है वो ए है, हमारे पास गैस है, वो डिफ्यूज कर रही है इन टूवर्ड द कैटालिटिक प्लेट, और जो बी है वो हमारे पास डिफ्यूज आउट कर रहा है, और जब ये मूव करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्रिएट होगी, जिस वजह से रिएक्शन जो है वो मुश्किल होगा। और उसके बाद कंसंट्रेशन कर्व उन्होंने बताई हुई हैं, उसमें यह है कि एक्स ए नॉट जो है वो डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे वो प्लेट की तरफ मूव करेगा, कैटालिटिक प्लेट की तरफ, और जो एक्स पी नॉट है वो डिक्रीज होगा जैसे वो बल्क फ्लो की तरफ मूव करेगा। वेरी गुड एमन, एक्सीलेंट। ठीक हो गया जी बेटा, ये ओवरऑल एक सिचुएशन थी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द स्टाइकोमेट्री ऑफ द रिएक्शन 2A इज गोइंग इनटू B, सो अगर 2A इज गोइंग इनटू B, देन अकॉर्डिंग टू दिस स्टाइकोमेट्री NBZ विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ NAZ। NBZ क्या है जी? NBZ है मोलर फ्लो ऑफ द कंपोनेंट B, और NAZ क्या होता है आपको पता है? NAZ होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑफ कंपोनेंट A। अब हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्टाइकोमेट्री के 2A के मॉलिक्यूल एंटर हों तो 1B का मॉलिक्यूल निकलता है। फॉर एवरी 2 मोल्स ऑफ A देयर इज 1 मोल ऑफ B, ठीक है। इट मीन्स कि जो B का जो फ्लो होगा वो A से हाफ होगा, इसलिए वो कह रहा है कि NBZ जो है इज हाफ ऑफ द NAZ, ठीक है। जो B का जो कंपोनेंट B जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है उसका जो मोलर फ्लक्स है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, दैट वुड बी हाफ ऑफ द A अकॉर्डिंग टू द स्टाइकोमेट्री। और अगर मैं स्टाइकोमेट्री चेंज कर दूं, अगर मैं कहूं 2A की बजाय मैं कह दूं A इज गोइंग इनटू B, तो जब A इज गोइंग इनटू B कहूंगा तो इट मींस कि NBZ इज इक्वल टू NAZ हो जाएंगे, क्योंकि फॉर एवरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ A 1 मॉलिक्यूल ऑफ B विल बी प्रोड्यूसिंग। सिमिलरली अगर मैं स्टाइकोमेट्री को उलट कर दूं, मैं कहूं कि A इज इक्वल टू 2B, कि एक 1 फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ A, इफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ A इज एंटरिंग देयर वुड बी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। सो ये जो दो फ्लक्सिस का रिलेशन है NBZ का और NAZ का, इनका रिलेशन कहां से आना है? अकॉर्डिंग टू द स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन। सो ये आपको स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन से जो फ्लक्सिस का रिलेशन है, ये बड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, यू मस्ट नो दिस। ओके, सो हमने वो जो एक इक्वेशन शुरू में पढ़ी थी कि किसी भी कंपोनेंट का जो NAZ जो कंबाइंड फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फ्लक्स प्लस कन्वेक्टिव फ्लक्स। ये हमने बेसिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 18 की जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो यही थी। अब यहाँ पर NBZ को भी जो है वो NAZ में अगर हम रिप्रेजेंट कर दें तो वी विल गेट NAZ इज इक्वल टू माइनस C DAB आवर 1 माइनस 1 आवर 2XA इंटू DXA आवर DZ, ठीक है। कि जो फ्लक्स ऑफ A है दैट इज इक्वल टू C मीन द टोटल मोलर डेंसिटी, DAB डिफ्यूजिविटी ऑफ A इंटू B, 1 माइनस 1 आवर 2XA। XA क्या चीज है? द फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट A, ठीक है। तो जैसे जैसे वो बाउंड्री लेयर में से हम पास करेंगे तो A की फ्रैक्शन XA जो होगी वो चेंज हो रही होगी, और उस चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं DXA और DZ से, ठीक है। कि चेंज इन द फ्रैक्शन ऑफ A इन द Z डायरेक्शन। एंड व्हाट इज द Z डायरेक्शन? Z डायरेक्शन इज into the boundary layer. You can see Z direction into the boundary layer. At the surface Z is equal to 0, at in the bulk flow Z is equal to 0, and at the surface of the catalyst particle Z is equal to delta, and delta is the total thickness of this hypothetical boundary layer. So we have first defined the molar flux of A, and if you remember we have done the same thing in the previous case when we apply the mass transport to the evaporating fluid, and there we said that NBZ is equal to 0 because there was no bulk flow of the B, but here the relation between B and A is the written, and we have defined the NAZ. Now in solving this problem we have take the number of assumptions. We will take the assumption of the steady state, and we will take the assumption of the most important is the isothermal.
although when there is a chemical reaction, and in each and every chemical reaction there is a change in the temperature, because every chemical reaction takes place by absorbing heat or by rejecting heat. So obviously the chemical reaction is always non-isothermal, because into the reactor the temperature will be changed due to the heat of the reaction. But for the sake of simplicity, we have assumed the isothermal case. So you know it very better that when there is an isothermal case, then you don't need to solve the equation of change for the temperature or equation of change for the energy. But when there is a non-isothermal case, that would be the case in paper. So you have to solve the temperature equations, the equation of change for temperature with the mass transport equation. So anyhow, in this case, in this lecture, we have taken the assumption of the isothermal. It means the density will be constant, the viscosity will be constant, and everything will be assumed as constant. Okay, again, now let us apply the shell mass balance. Where we apply the shell mass balance? We will apply the shell mass balance in this boundary layer. Let us assume a shell of thickness delta Z into the boundary layer like I have drawn in the figure. कि इस फिगर के अंदर आप डेल्टा Z थिकनेस का एक जो है वो शेल कंसीडर करें. Now apply the mass transport over this shell. The number of moles entering into the shell, number of moles leaving into the shell. And into the shell there is no generation or no consumption, because the chemical reaction is taking place at the catalyst surface, not into the boundary layer. So if our shell is into the boundary layer, there is no any chemical reaction. So A entering would be equal to A leaving, and if we apply the steady state, it will become is equal to 0, and the shell mass balance equation would lead to the same equation as we apply in the last case. कि वो जो हमने कंसीडर किया था कि एक जो है वो सिलेंडर है या एक ग्लास है जिसकी एक सरफेस है लिक्विड की, वहां से वेपोरेट हो रहा है और हमने ए कंपोनेंट का बैलेंस लगाया था. सेम शेल बैलेंस वी विल अप्लाई इनटू दिस boundary layer and we will result into the same equation. dNAZ over dZ is equal to 0. And remember that we have not taken the chemical reaction because in the boundary layer there is no chemical reaction. Okay, यहाँ समझ लग गई जी. मोहम्मद रेहान समझ लग गई आपको? जी सर. गुड हो गया बेटा. जिशान यहाँ पर है. जिशान, शहजाद, मोहम्मद शहजाद, जी अबरार, जी आतिका रिजवान, जी आमिर जुबैर. यस सर. जी आपको समझ लग गई बेटा? यस सर, ऑल क्लियर सर. ओके बेटा, यहाँ तक शेल. व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि हमने ये dNAZ और dZ इज इक्वल टू 0 है. ठीक है बेटा, आप लेक्चर सुने हम. सो अब हमने यहाँ पर NAZ की वैल्यू को जो है वो पुट कर दिया. NAZ की वैल्यू किधर से आएगी? NAZ का जो फ्लक्स है अभी हमने पिछली स्लाइड में जो है वो डिफाइन किया है. सो उसके बाद फिर हमने क्या किया कि उसके अंदर C और DAB था. सिमिलरली हमने कहा कि फॉर द constant temperature and pressure, C the overall concentration density and the diffusivity will be constant. जब constant होंगे तो वो differential sign से बाहर आ जाएंगे और right hand side पे जाके वो 0 हो जाएंगे. Now in order to solve this equation, when we will solve this equation, we will integrate it 2 times and then we get minus 2 log natural of 1 minus 1 over 2 XA is equal to C1Z plus C2. तो ये बेटा सिंपल जो है वो इसकी इंटीग्रेशन किया. जब हम फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो C1 प्रोड्यूस हो जाएगा. जब सेकंड टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग नेचुरल में चला जाएगा और साथ C2 आ जाएगा.
अब हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जब लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन जो है वो लॉग नेचुरल की टर्म में है, तो हम ये जो कांस्टेंट C1 और C2 जो कांस्टेंट हैं इनको भी हम लॉग नेचुरल की फॉर्म में लिख, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, तो इनको हम किसी भी कांस्टेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये जो C1 और C2 था, वी हैव रिटन द C1 एज -2 log natural of K1 and we have written the C2 as -2 log natural of K2. So C1 and C2 are the constant, and according by looking the mathematical form of the equation, we have written the C1 and C2 in the form of K1 and K2, where K1 and K2 are nothing but the constants. अब हमें ये इक्वेशन को जो है वो सोल्व करने में आसानी होगी. नाउ वी हैव टू अप्लाई द बाउंड्री कंडीशंस. Can anybody tell me the boundary conditions? Anyone? What may be the boundary condition? सर क्योंकि हम z और xa का कंसीडर कर रहे हैं, तो सर जो z इक्वल टू 0 के ऊपर जो हमारी xa की जो मोल फ्रैक्शन है वो होगी xa नोट, और जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है वो होगी कि z इज इक्वल टू सिग्मा के जो हमारी फिल्म के ऊपर जो होगी उसकी हमारी होगी xa इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो नीचे आके ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है xa। वेरी गुड बेटा, आपने बिल्कुल 100% ठीक बताया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो राफे ने जो पहला सेंटेंस बोला था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. वो क्या था? वो ये था कि हम XA का Z के साथ रिलेशन देख रहे हैं. So in the analysis of transport phenomena, in the mass transfer, in the heat transfer, in the momentum transfer, this is very important. You must have very good and very sound idea what is the variable I am going to study and in what direction I am going to study, because in the chemical reaction there would be a three-phase phenomena, but particularly when we will solve the distillation and when we will solve the chemical reactor, because but this is a learning stage, this is undergraduate, the first course of transport phenomena. So we will usually consider one dimensional flow, we take the other change in the other dimension at 0. So here we have not considered the x direction and y direction, we have considered the z direction, because the main the diffusion is taking place in the z direction. And what will be the variable, which component is going to be changed? XA and XB is going to be changed. So the boundary condition would be at z is equal to 0, and the other boundary condition mean the extreme points. What are the extreme point? The extreme point at the both surface of the boundary layer. One surface of the boundary layer is at the bulk fluid, and the other surface of the boundary layer is the catalyst surface. So Z is equal to 0, XA is equal to XA node. XA node means the initial concentration, the initial known concentration of the A in the bulk fluid. XA node क्या है कि वो जो गैस A एंटर हो रही है उसके अंदर A की कंसंट्रेशन कितनी है. और याद रखें XA के लिए मैं कंसंट्रेशन का वर्ड तो बोल रहा हूँ, लेकिन ये फ्रैक्शन है, बेसिकली कंसंट्रेशन नहीं है, ये फ्रैक्शन है. And the second Z is equal to delta, XA node is equal to 0. So this is very important. The most important thing in this case is this assumption XA is equal to 0. What is the meaning of XA is equal to 0? XA is equal to 0 mean, please listen carefully, that we have taken the assumption of instantaneous reaction. We have taken the assumption that the reaction is very fast. The reaction is infinite. So fast that whenever any molecules of A comes in contact with the solid surface, within no time this reactant A is converted into the product B and its concentration becomes 0. This assumption would only valid when we would say that the reaction is very fast. The reaction is instantaneous, कि जैसे ही कोई A का मॉलिक्यूल उस सरफेस पे आके टच होता है तो रिएक्शन इतना फास्ट है, रिएक्शन की काइनेटिक्स इतनी फास्ट है कि वो फौरन A जो है वो B में कन्वर्ट हो जाता है और A की कंसंट्रेशन फौरन जो है विद नो टाइम 0 हो जाती है. So this XA is equal to 0 at the surface of the catalyst mean we have taken the assumption of instantaneous chemical reaction. So this is very important. So by using these two boundary conditions, we will evaluate K1 and we will evaluate K2.
and we will get the concentration profile in term of the fractions. So who will read this equation? जी बेटा इसको कौन पढ़ेगा? Anyone? जी हाशमी सरमत, जी इकरा गुलजार, जी मोहम्मद जाजिब, जी नुमान नसीम, नुमान नसीम, जी सैफ अली, जी एनीवन लिसनिंग मी? सर मैं बताऊं? जी बेटा बताएं। जी अली अहमद शाह साहब। सर मैं बता दूं? जी बेटा बताएं। 1 minus 1 over 2xa equals to 1 minus 1 over 2xa naught raised to power 1 minus x over sigma. वेरी गुड आतिका, ये बताइएगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा वेरिएबल है और राइट हैंड साइड पे कौन सा वेरिएबल है? सर लेफ्ट हैंड साइड पर xa, लेफ्ट हैंड साइड पे x है तो 2 वेरिएबल नहीं है 1 over 2? नहीं सर ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। चले ठीक है, ये कांस्टेंट ही है। चलें आगे। और राइट हैंड साइड पे सर सिग्मा नहीं, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ जी, सिग्मा इज द थिकनेस ऑफ द फिल्म, इट वुड बी कांस्टेंट। हम इसको फॉर द गिवन सिचुएशन हम कहेंगे कांस्टेंट। एक्स से नोड ये भी कांस्टेंट होगा क्योंकि एक्स से नोड जो है वो बल्क की कंसंट्रेशन है ए की, ठीक है। और जी अब्दुल वासे, जी बेटा बताएं राइट हैंड साइड पे वेरिएबल कौन सा है? Z। श्योर? यस। आपके नाम में तो Z आता भी नहीं है यार। लेकिन यहाँ तो वेरिएबल है। चलें ठीक हो गया, वेरी गुड हो। सो ये हमें कंसंट्रेशन प्रोफाइल मिली है, दैट इज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वाज अ ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, ठीक है। ओके नेक्स्ट इज, सो व्हाट वी विल डू, वी वांट टू फाइंड आउट द फ्लक्स। बेसिकली हमने लास्ट टाइम भी यही किया था कि अब हमने जब कंसंट्रेशन प्रोफाइल निकाल ली है तो अब हमारे पास है कि हम NaZ की वैल्यू निकालें। हम देखें तो सही क्वांटिटेटिवली कितना NaZ की वैल्यू आती है। मीन के एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो A का फ्लक्स जो है वो जा रहा है। NaZ क्या चीज है? NaZ इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, A का फ्लक्स, ठीक है। ये कितना है? तो अकॉर्डिंग टू दिस इस जो इसकी इक्वेशन आई हुई है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू माइनस C DAB आवर 1 minus 1 over 2XA into DXA over DZ, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास, हमने इस टॉपिक के शुरू में NaZ की इक्वेशन निकाली हुई है जो हमने NBZ is equal to minus 1 over 2 NaZ को पुट किया था। अब इस इक्वेशन के अंदर जो हमें जो चाहिए वो है DXA over DZ। We want to evaluate DXA over DZ। तो ये कहाँ से आएगा? ये आएगा जो अभी हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर जो लास्ट इक्वेशन जो आतिका ने भी पढ़ी है, वो इक्वेशन जो भी हमने लिखी है 1 minus 1 over 2XA is equal to 1 minus 1 over 2XA नोट raised to the power 1 minus Z over डेल्टा। इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे Z के लिहाज से। जब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे Z के लिहाज से तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी बन जाएगा -1 over 2 DXA over DZ।
और इसी तरह राइट हैंड साइड भी जो है वो हम z के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। और यहाँ पर जो है वो आपको पहले भी बताया था, इस तरह की इक्वेशन के अंदर a⁻⁴ वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि जो वेरिएबल जिसके लिहाज से हमने डिफरेंशिएट करना है z वो पावर में पड़ा हुआ है, तो पावर वाला डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगेगा। सो इस इक्वेशन से dxa और dz की वैल्यू निकालेंगे बेटा, और na z में की जो इक्वेशन है उसके अंदर पुट करेंगे एंड वी विल गेट द NAZ is equal to CA DAB our delta log natural of 1 over 1 minus 2 XA naught। बेसिकली ये जो NAZ की हमने ये जो इक्वेशन निकाली है, दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाई दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन बेटा? क्योंकि NAZ क्या चीज है? रेट ऑफ रिएक्शन की क्या यूनिट्स होती हैं? मोल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और अगर वो वॉल्यूमेट्रिक रिएक्शन हो रहा है तो मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो जब कैटालिटिक रिएक्शंस होते हैं तो हम पर यूनिट सरफेस एरिया की बेस के ऊपर केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। सो NaZ क्या चीज है? NaZ है मोलर फ्लक्स ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A पर यूनिट एरिया ऑफ कैटलिस्ट पर यूनिट टाइम, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। सो बेसिकली वी हैव फाउंड द रेट ऑफ रिएक्शन। सो इस रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आप एनालाइज करें, NaZ की इक्वेशन को एनालाइज करें, सो एनालाइज करने का मतलब ये है कि आप NaZ देखें किस किस वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बेटा, इसको गौर से आपने अंडरस्टैंड करना है। अब अगर मैं कहूं कि डिफ्यूजिविटी ज्यादा हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, डिफ्यूजिविटी ज्यादा होने का मतलब ये है कि वो बाउंड्री लेयर में से ए के मॉलिक्यूल्स बड़े फास्ट डिफ्यूज कर रहे हैं, तो जितनी फास्ट डिफ्यूज करेंगे उतनी जल्दी वो सरफेस तक पहुंच जाएंगे और उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है डेल्टा के। इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है? वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल? एनीवन? जी बेटा, कौन एक्सप्लेन करेगा इसको कि जो डेल्टा है थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर, रेट ऑफ रिएक्शन उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, वाई? एनीवन? जी रमजान, मोहम्मद रमजान। जी सर। जी बेटा, क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है? सर जैसे जैसे थिकनेस इंक्रीज होगी तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होगा। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा उसकी जितना ज्यादा उसको डिफ्यूज होना पड़ेगा, जितना ज्यादा उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। डेल्टा का मतलब ये है कि थिकनेस फिल्म की ज्यादा होगी है तो उसको ट्रैवल भी ज्यादा करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन उतनी फॉल डाउन हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। सो यू मस्ट नीड टू एनालाइज दिस इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। सो द लास्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि इस केस के अंदर द केस वी हैव स्टडीड द डिफ्यूजन विद हेटेरोजेनियस केमिकल रिएक्शन, but in generally there are two types of the there are two strategy for the reactor design. One is either the reaction is kinetically controlled, that is kinetic controlled reactions, and sometimes the reaction is controlled by the diffusion, that is called diffusion controlled reaction. तो इनमें से अब दो चीज, जब केमिकल रिएक्शन होता है दो चीजें होती हैं, वन इज द काइनेटिक्स, वन इज द diffusion. Whatever is the slow would be the designing parameter. If the kinetic is slow, the reactor would be designed based on the kinetics. If the diffusion is slow, the diffusion is the limiting, the diffusion is the main resistance, then the reactor will be designed based on the diffusion. So in this case we have assumed that the reaction is infinitely fast. The reaction is so much fast that whenever the A molecules come in contact with the surface, it disappears at no time. It disappears immediately. That is called the reaction is very fast. It means that this reaction will not controlled by the kinetics, but this reaction will be controlled by the diffusion. हमने ये कहा कि रिएक्शन बहुत फास्ट है, इसलिए इसकी जो ये जो रिएक्टर डिजाइन है ये काइनेटिक्स पे डिपेंड नहीं करेगा। काइनेटिक्स जो है मेन रेजिस्टेंस नहीं है, मेन रेजिस्टेंस क्या है? डिफ्यूजन। सो समटाइम्स द रिएक्टर्स आर काइनेटिकली कंट्रोल। अगर रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा हो, रिएक्शन की काइनेटिक्स बड़ी स्लो हो,
ठीक है, तो तब वो काइनेटिकली कंट्रोल होता है, जब डिफ्यूजन जो है वो स्लो हो तब डिफ्यूजन कंट्रोल होता है। बेसिकली ये रिएक्शन काइनेटिक्स की और डिफ्यूजन की, ये दोनों जो रेजिस्टेंसेस होती हैं वो इन सीरीज आती हैं। जिस तरह आपने देखा कि वो जो हीट एक्सचेंजर के डिज़ाइन के अंदर वो जो हीट एक्सचेंजर की जो रेजिस्टेंसेस होती हैं वो सीरीज के अंदर होती हैं। इसी तरह केमिकल रिएक्शन के अंदर भी सेम एनालॉजी की बेस के ऊपर एक काइनेटिक्स की रेजिस्टेंस होती है और एक डिफ्यूजन की रेजिस्टेंस होती है। समटाइम्स हम डिफ्यूजन की रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि हम डिफ्यूजन की रेजिस्टेंस को कब निगलेक्ट करेंगे? जब DAB 0 हो या DAB इनफाइनाइट के करीब हो। When we will neglect the diffusion, when we will neglect the diffusion resistance in the design of chemical reactor, when case 1 is diffusivity is almost 0, case 2 is diffusivity is almost infinity, when it would be neglected? जी कौन बताएगा? अरे बताए मुझे। जबरान यूनस, कौन है जबरान यूनस के जबरान यूसुफ? CR जबरान। जी अरीज। जी सर। जी बेटा बताएं, मेरा क्वेश्चन समझ लगी है आपको? रिपीट कर दें। बेटा क्वेश्चन ये है कि इस केस, अच्छा ये बताएं कि इस केस में हमने काइनेटिक्स को निगलेक्ट किया है या डिफ्यूजन को निगलेक्ट किया है? सर काइनेटिक्स को किया है। हमने कहा कि काइनेटिक्स बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट है, इट मीन्स कि ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं कर रही होगी, तो हमने कहा कि काइनेटिक्स नहीं है, डिफ्यूजन कंट्रोल है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि उलट केस अगर हो जाए, कि कौन सा केस होगा कि मैं कह सकता हूँ कि डिफ्यूजन को निगलेक्ट कर दें और काइनेटिक्स की बेस के ऊपर डिज़ाइन करें? तो डिफ्यूजन डिपेंड कर रही है डिफ्यूजिविटी के ऊपर। तो डिफ्यूजिविटी जब 0 होगी तो डिफ्यूजन को निगलेक्ट करेंगे, या डिफ्यूजिविटी जब इनफाइनाइट की तरफ जाएगी तो डिफ्यूजन को निगलेक्ट करेंगे? डिफ्यूजिविटी जब इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट, आप ठीक कह रही हैं। अब्दुल तवाब। यस सर। जी बेटा, आपको इस चीज़ की समझ लगी है यस सर। कि जो लो रेजिस्टेंस होती है, हमने जो लो रेजिस्टेंस, जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है उसकी बेस के ऊपर डिज़ाइन करते हैं। तो समटाइम्स रिएक्शन काइनेटिक्स जो होगी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और समटाइम डिफ्यूजन की रेजिस्टेंस जो होगी वो ज़्यादा होगी, लेकिन यूजुअली हम दोनों को कंसीडर करके डिज़ाइन करेंगे। इस केस के अंदर हमने काइनेटिक्स को इनफाइनाइट लेकर डिज़ाइन किया है, जो कंसंट्रेशन प्रोफाइल निकाली है, जो मॉडल निकाला है, जो रेट ऑफ रिएक्शन हमने निकाला है, उसमें हमने काइनेटिक्स को कंसीडर नहीं किया। क्यों नहीं किया? हमने कहा कि काइनेटिक्स की स्पीड है ही बहुत फास्ट, ये जो है वो लिमिटिंग फैक्टर प्रोड्यूस नहीं कर रही। इसलिए अगर आप देखें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो इक्वेशन है, इसके अंदर काइनेटिक का कोई पैरामीटर आपको नजर नहीं आएगा, ना इसके अंदर रेट कांस्टेंट आ रहा है, ना इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ रहा है। इसके अंदर डिफ्यूजिविटी आ रही है क्योंकि ये डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शन। इन द केस, यहाँ पर ये केस खत्म हो गया और साथ ये एग्जांपल देता है, एग्जांपल नंबर 18.3.1। 18.3.1 में वो एग्जांपल देता है डिफ्यूजन विथ अ स्लो हेटेरोजेनियस रिएक्शन। कहता है कि हमने अभी केस डेवलप किया जिसके अंदर हमने काइनेटिक्स को इनफाइनाइट कंसीडर किया। कहता है फर्ज करें अगर काइनेटिक्स इनफाइनाइट ना हो, रिएक्शन इज नॉट इंस्टेंटेनियस, पहले हमने इंस्टेंटेनियस रिएक्शन को कंसीडर किया था। अब कहता है कि अगर रिएक्शन को इंस्टेंटेनियस ना कंसीडर करें, देन द रिएक्शन इज नॉट इंस्टेंटेनियस, देन व्हाट वुड बी द सिचुएशन। यानी इसी केस को, जो हमने ये केस अभी सोल्व किया है, इसको दोबारा सोल्व करना है, लेकिन रिएक्शन को इंस्टेंटेनियस कंसीडर नहीं करना। अब पहले कोई मुझे बच्चा बता सकता है कि कहां पर जाके जो है वो डिफरेंस आएगा? मैथमेटिकल एनालिसिस में किस पॉइंट पे जाके डिफरेंस आएगा? सर बाउंड्री कंडीशन जब लगाएंगे।
कौन बात कर रहा है बेटा? अब्दुल तवाब। अब्दुल तवाब साहब, एक्सीलेंट, आपने बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि डिफरेंस जो होगा वो बाउंड्री कंडीशन पे जाके आएगा। आपने बुक तो नहीं खोली हुई है? मेरी स्लाइड्स का अगला हिस्सा तो नहीं आपके पास है? नहीं सर, लेक्चर ले रहा था। वेरी गुड बेटा अब्दुल तवाब, वेरी गुड, एक्सीलेंट यार। So that main difference in between the boundary condition. So boundary conditions पे क्या हो रहा होगा कि हम डिफाइन करेंगे कि ये NaZ है। अब जब हमने assumption ले ली कि रिएक्शन भी जो है वो इंस्टेंटेनियस नहीं हो रहा, बल्कि रिएक्शन भी जो है वो अपनी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो अब हमें मैथमेटिकल जो एनालिसिस है वो डिफरेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि NaZ, द मोलर फ्लक्स ऑफ A is equal to the rate constant K1 and the concentration Ca at the surface। ठीक है कि अब जब हम कह रहे हैं कि रिएक्शन जो है वो इंस्टेंटेनियस नहीं है, इट मींस कि वो जो A का फ्लक्स है, बेसिकली A का फ्लक्स कह लें या B का फ्लक्स कह लें, बात एक ही है, क्योंकि A और B आपस में वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू आपस में कोरिलेट है। इट मींस कि वो जो A का फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, बेसिकली ए का फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ए तो कंज्यूम हो रहा है। लेकिन अगर आप गौर करें तो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ नेगेटिव साइन नहीं लिखा। रेट ऑफ रिएक्शन के साथ नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिखा बेटा? इसलिए कि ए कंज्यूम हो रहा है, ए जनरेट नहीं हो रहा। ठीक हो गया। सो ए जो कंज्यूम हो रहा है, या समझ लें कि ए का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है सरफेस कंसंट्रेशन के ऊपर, कि कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर ए की क्या कंसंट्रेशन आएगी। सो NaZ इज इक्वल टू K डबल प्राइम। अगर आपको याद हो, K डबल प्राइम का मतलब होता है कि ये K1 जो है ये सरफेस की बेस के ऊपर डिफाइन है। Ca इज द कंसंट्रेशन एट द सरफेस, दैट इज इक्वल टू K1 डबल प्राइम इंटू CaX, यानी कि जो Ca जो A की कंसंट्रेशन है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं C इंटू XA, वेयर C इज द बल्क टोटल कंसंट्रेशन डेंसिटी एंड XA इज द फ्रैक्शन ऑफ A। सो सबसे पहले तो हमें ये मैथमेटिकली डिफाइन करना पड़ेगा कि सरफेस के ऊपर रिएक्शन हो रहा है और जो A प्रोड्यूस हो रहा है वो इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द A एट द सरफेस। तो बाउंड्री कंडीशन 2 होगी एट Z इज इक्वल टू डेल्टा XA इज इक्वल टू NaZ K1C। तो जो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है एट Z इज इक्वल टू 0, वो बेटा सेम रहेगी। ठीक है। तो जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है वो Z इज इक्वल टू डेल्टा के ऊपर XA इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। वो जो अभी हमने पिछला केस किया वहां पर हमने क्या कहा था कि XA 0, XA इज इक्वल टू 0, वो थी असम्पशन इंस्टेंटेनियस फास्ट रिएक्शन की, कि जैसे ही सरफेस के ऊपर आता है A सारे का सारा फौरन कंज्यूम हो जाता है। जब A सारा कंज्यूम हो जाता है तो A की कंसंट्रेशन फौरन 0 हो जाती है। तो हमारे पास सिस्टम इजी हो गया था। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं, रिएक्शन जो है वो फास्ट नहीं हो रहा, बल्कि रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक्स, तो वहां पर जो होगी वो XA अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक इक्वेशन जो होगी वो आ जाएगी। यहाँ पर हम n की वैल्यू जो है हमने 1 कंसीडर की हुई है, क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक होता है रेट कांस्टेंट, एक होता है ऑर्डर। तो हमने ऑर्डर जो है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कंसीडर किया हुआ है। अगर सूडो फर्स्ट ऑर्डर कंसीडर नहीं करेंगे तो यहाँ पर ऊपर जो है वो n भी कंसीडर करना पड़ेगा हमें। अगेन अब बाकी प्रोसीजर वही है बेटा, आपने दोबारा इसको सोल्व करना है और यहाँ से जो है वो कंसंट्रेशन प्रोफाइल निकालनी है। इस केस में जो कंसंट्रेशन प्रोफाइल आएगी वी विल गेट 1 माइनस 1/2 XA। जी इसको पहले कंसंट्रेशन प्रोफाइल की इक्वेशन किसने पढ़ी थी? जी आतिका चौधरी जी। दोबारा बेटा इसको पढ़े, दोबारा इस कंसंट्रेशन प्रोफाइल को पढ़े। 1 minus 1/2 XA equals to 1 minus 1/2 NaZ over K1 raised to power N C bracket close whole raised to power Z over sigma into 1 minus 1/2 XA naught और 1 minus Z over sigma। जी बेटा वेरिएबल का भी बताएं कि राइट हैंड साइड पे कौन से वेरिएबल हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन से वेरिएबल? सर Z जो है राइट हैंड साइड पे वेरिएबल है, और n भी बेटा कांस्टेंट होगा। क्लास आप सुन लें कि n अंडर द स्टेडी स्टेट कंडीशन NaZ वुड बी कांस्टेंट। सर मैं स्मॉल n का कह रही थी। जी बेटा बेसिकली वो स्मॉल n नहीं है, वो डबल प्राइम है, तो वो थोड़ा सा उसमें पिक्चर में वो आ रहा है K1 डबल प्राइम है।
n जो जी है सर। हमने 1 कंसीडर किया हुआ है, वो डबल प्राइम, इट मींस कि k1 जो है वो रेट कांस्टेंट जो है वो सरफेस की बेस के ऊपर जो है वो डिफाइन। सो ये हमें आप देख सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन प्रोफाइल आया मजीद कम्प्लेक्स हो गया। अब अगर मैं कंसीडर कर लेता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी n इज इक्वल टू 2 कर देता तो ये मजीद कम्प्लेक्स हो जाना था। और अगर मैं कहूँ कि अब नॉन आइसोथर्मल केस हो गया कि टेम्परेचर भी साथ चेंज हो रहा है, तो इट मीन्स कि आपको इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर भी साथ चेंज करनी पड़ी। तो जैसे जैसे आप अजम्पशंस को उठाते जाएंगे, जैसे जैसे आप अजम्पशंस को एलिमिनेट करते जाएंगे, तो सिस्टम का मैथमेटिक्स जो है वो कम्प्लेक्स होता जाएगा। एंड जैसे जैसे आप सिस्टम के ऊपर अजम्पशंस को इम्पोज करते जाएंगे, मैथमेटिक्स जो होगा वो सिंप्लीफाई होता जाएगा। सो पहले हमने केस किया कि रिएक्शन जो था वो फास्ट था, इंस्टेंटेनियस था, तो हमने कंसंट्रेशन प्रोफाइल निकाली। फिर हमने एग्जांपल नंबर 18.3 में 1 में कंसीडर किया, तो हमने जो है वो कहा कि रिएक्शन जो है वो इंस्टेंटेनियस नहीं है, तो हमने जो है वो किया दूध भी निकालना। एक मिनट बेटा, तनवीर साहब आए। Okay, so this is a concentration profile in the case when the reaction is not instantaneous। तो मुझे जो है वो बड़ा मज़ा आएगा जब मैं पेपर में कहूँगा जी कि रिएक्शन जो है वो इंस्टेंटेनियस भी नहीं है और जो है वो केस भी नॉन आइसोथर्मल नहीं है, नॉन आइसोथर्मल केस है, और रिएक्शन भी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, और मैं ये भी कहूँगा कि सिस्टम भी जो है वो स्टडी स्टेट नहीं है, और ये सारी मैं चीज़ें लगा के फिर मैं कहूँगा कि इसको सोल्व करें आप लोग। ठीक है रमजान साहब, आपको समझ लग गई ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर लग गई सर। हाँ जी, तो ये जो है ना अपने अपने जो चीज़ें जो है आपने पूरी करके आपने लेकर आनी है। सर इतना भी डराया पेपर से आप। यार अभी ख़त्म करने दे आमिर यार, एक मिनट ज़रा। अच्छा, इसको जो है वो फाइनली इसको जो है वो फिर उसी तरह हमने जब कंसंट्रेशन प्रोफाइल निकाला था उसके बाद हमने NaZ की वैल्यू निकाली थी। तो अगेन यहाँ पर बेटा NaZ की वैल्यू निकालने, NaZ की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, dxa और dz चाहिए। तो पहले हमने उस वाली इक्वेशन को z के लिहाज से डिफरेंशिएट किया था, अब ये वाली इक्वेशन जो है xa की, इसको z के लिहाज से डिफरेंशिएट कर लें और dxa और dz की वैल्यू निकाल के तो NaZ की वैल्यू निकाल लें जैसे कि अभी हमने पहले किया। सो वी विल गेट NaZ इज इक्वल टू CdAB आवर डेल्टा, मेरा ख्याल है कि ये डेल्टा ही है, log नेचर ऑफ 1 - 1 over 2 NaZ आवर K1 डबल प्राइम C डिवाइडेड बाय 1 - 1 over 2 XA नोट। सो उसके बाद ये हमारे पास आ गया। वो मजीद कहता है जी कि थोड़ा सा टेलर सीरीज के थ्रू इसको एक्सपेंड कर लें। ये जो log नेचर ऑफ 1 - 1 over 2 NaZ K1C है, इसको अगर कहता है जी टेलर सीरीज के थ्रू एक्सपेंड कर लें तो ये इक्वेशन जो है थोड़ी सी सिंप्लीफाई होके तो NaZ इज इक्वल टू 2CdAB आवर डेल्टा 1 प्लस DAB K1 डबल प्राइम log नेचर ऑफ K1। सो फाइनल चीज ये है कि इस इक्वेशन के अंदर जो है वो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट डायमेंशनलेस नंबर प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डैम कोहलर नंबर। बेसिकली इट इज कॉल्ड सेकंड डैम कोहलर नंबर। तो आपने सिर्फ रेनॉल्ड्स नंबर याद नहीं करना, और भी केमिकल इंजीनियरिंग में जो है वो बहुत ज़्यादा डायमेंशनलेस नंबर हैं। सो वन ऑफ द डायमेंशनलेस नंबर दैट यूजुअली अपीयर्स इन द रिएक्टर डिजाइन इज द डैम कोहलर नंबर। दिस वाज द जर्मन साइंटिस्ट। सो कोई इस डैम कोहलर नंबर को देखते हुए कि डैम कोहलर नंबर इज इक्वल टू K1 डेल्टा आवर DAB, कोई मुझे बता सकता है कि डैम कोहलर नंबर जो है वो किन दो फिनोमिना का, कौन से दो फिनोमिना का जो है वो इसके अंदर कंपैरिजन है? जिस तरह हमने पढ़ा हुआ है ना कि नसर नंबर जो होता है, या हमने पढ़ा हुआ है प्रांटल नंबर होता है, वो भी कंपैरिजन होता है कि थर्मल डायफ्यूजिविटी और मोमेंटम डायफ्यूजिविटी। हमने ये भी पढ़ा कि श्मिट नंबर भी जो होता है वो भी दो फिनोमिना का कंपैरिजन होता है। तो कोई डैम कोहलर नंबर को देखे कि न्यूमिनेटर में क्या चीज़ है, डिनोमिनेटर में क्या चीज़ है, और बताए कि ये किन दो फिनोमिना का कंपैरिजन है। एनी वन ऑफ यू? मैं बताऊं सर? जी बेटा जरूर, श्योर। सर ये काइनेटिक्स की रेशो है और डिफ्यूजिविटी की रेशो है।
आप रीच बात कर रही हैं, अच्छा जी बिल्कुल ठीक, आपने रीच बेटा आपने कहा है कि अब जब हमने बात ये हमने जो दो केसेस किए हैं इसमें क्या किया है कि जो पहला केस किया है जो मेन टॉपिक किया है उसमें हमने जो काइनेटिक्स थी, काइनेटिक्स भी एक तरह की जो है वो मैकेनिज्म है, काइनेटिक्स भी जो है वो एक स्टेप है रिएक्शन का, हमने उस स्टेप को कंसीडर नहीं किया था, हमने कहा था कि ये बहुत फास्ट है। जो हमने सेकंड अभी ये एग्जांपल किया इस स्लाइड के अंदर उसमें हमने जो है वो काइनेटिक्स को भी कंसीडर किया और डिफ्यूजन को भी कंसीडर किया। तो बेसिकली ये जो डैम कोहलर नंबर है ये जब इस तरह का रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा होगा, रिएक्टर डिजाइन कर रहे होंगे, तो डैम कोहलर नंबर जो होगा हमें काइनेटिक स्पीड ऑफ काइनेटिक्स डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ डिफ्यूजन के बारे में बताएगा। ठीक है बेटा, कि अगर आप इसको डैम कोहलर नंबर को देखें तो न्यूमिनेटर में है K1 यानी रेट कांस्टेंट यानी काइनेटिक्स, और डिनोमिनेटर में है डिफ्यूजिविटी। तो डिफ्यूजिविटी किससे रिलेट कर रही है? डिफ्यूजिविटी जो है कौन सा फिजिकल फिनोमिना हो रहा है? डिफ्यूसिव मैस ट्रांसफर का। और K1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? केमिकल रिएक्शन को। तो डैम कोहलर नंबर जो होता है इट मींस के इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन द स्पीड ऑफ काइनेटिक्स एंड स्पीड ऑफ डिफ्यूजन। तो अगर डैम कोहलर नंबर बहुत ज्यादा होगा, इनफाइनाइट को जो है अप्रोच कर रहा होगा, तो इट मींस के काइनेटिक्स जो है बहुत फास्ट है। अगर जो है वो डैम कोहलर नंबर जो है अगर वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा इट मींस के न्यूमरेटर बहुत ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ डिनोमिनेटर बहुत कम है। तो काइनेटिक्स का और डिफ्यूजन का जो होगा वो कंपैरिजन आएगा बाय द डैम कोहलर नंबर। यहाँ तक बेटा हमारा जो है वो कोर्स जो है वो काइंडली खत्म हो गया। काइंडली नोट कर लें असाइनमेंट नंबर 3 जो आपने मुझे फाइनल जमा करानी है, इसमें ये जो आज के हमने दोनों केसेस किए हैं ये दोनों केसेस भी शामिल होंगे, प्लस इन दोनों केसेस को आपने रिपीट करना है बाय टेकिंग द assumption of by not taking the assumption of isothermal. You have to solve these two cases for the non isothermal analysis. ठीक है, टाइम जो होगा मैं आपको नेक्स्ट वीक तक दे रहा हूँ, मींस कि आप जो है वो अगले हफ्ते तक मुझे अगले संडे तक मुझे दे दीजिएगा चाहे आप लोग, ठीक है, आपके पास 8-10 दिन हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट नंबर 3 में मैथ ट्रांसपोर्ट का जितना भी हमने कंसीडर किया हुआ है बेटा वो सारा आपने कंप्लीट करना है, प्लस आज के जो हमने दो केस, एक केस किया उस केस के साथ उस केस का आगे एक स्पेशल केस किया कि रिएक्शन को इंस्टेंटेनियस नहीं लिया, वो आपने बेटा सोल्व करना है। और सिर्फ आपने स्लाइड्स को कॉपी नहीं करना प्लीज, आपको पता है कि आपने इसके मैथमेटिकल स्टेप्स 1 बाय 1 करने हैं, प्लस आपने इन दोनों केसेस को दोबारा सोल्व करना है बाय टेकिंग द केस ऑफ नॉन आइसोथर्मल। ये हमने आइसोथर्मल के लिए किया है, इन्हीं केसेस को दोबारा आपने दोनों केसेस को दोबारा नॉन आइसोथर्मल के लिए भी आप लोगों ने करना है। ये आपकी होम असाइनमेंट है, आप लोगों ने करके 10 मार्क्स हैं इसके सेशनल, आप लोगों ने करके तो मुझे सबमिट करानी है। टाइम मैं आपको नेक्स्ट संडे तक का दे रहा हूँ। जी सीआर साहब, रमजान साहब आपको समय लग गई है? सर जी सर लग गई समय। असाइनमेंट का समय लग गई बेटा आपको सारा? जी सर। Okay beta, thank you. So this was the end. What was the situation? What was the circumstances? जिस तरह के भी सिचुएशन थी, जिस तरह के भी circumstances थे, जितना भी हम टाइम दे सकते थे, हम लोग जितनी भी एफर्ट लगा सकते थे, हमने इस लगा के इस कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो आप लोग भी आप इसके ऊपर मेहनत करें और इसको जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक है बेटा। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन है तो आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा। जी बेटा कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन regarding today lecture or regarding the paper exam or anything? सर पेपर का थोड़ा सा बता दें।
पेपर बता दूं, थोड़ा सा पेपर बता दूं, मैंने भी पेपर बनाया नहीं सर, है। नहीं सर बनाएंगे, मतलब किस तरह का, उसका क्या मतलब होगा? यार उसमें मैं ये सोच रहा हूँ कि जो है ना वो पेपर जो है ना राफे हम रख लेते हैं बकरी मंडी में, बकरा ओके मंडी में पेपर रख लेते हैं यार, क्योंकि यूनिवर्सिटी आते हुए तो आप बीमार हो जाएंगे, तो बकरा मंडी जाते हुए आप बीमार नहीं होते। तो क्या ख्याल है, क्लास पेपर जो है ना बकरा मंडी में रखते हैं, वहाँ सब सेहतमंद रहेंगे। क्यों जी सीआर साहब, क्या ख्याल है आपका? हाँ आई एम सीरियस यार, इसमें ऐसी कोई कालाशाह काकू कोई बाहर हमारी ना वो टूल प्लाजा के साथ बकरा मंडी लगी हुई है, तो उधर पेपर रख लेते हैं यार, वहाँ पर एसओपी तो पूरे होंगे, क्योंकि आप बकरा लेने तो जा रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए आपका। लेकिन यूनिवर्सिटी में जो है वो आप बीमार होंगे तो क्या चक्कर। वैसे मैं भी यूनिवर्सिटी में ही बैठा हूँ अभी भी, मेरी फैमिली भी इधर ही बैठी हुई है यार। यस सर। अच्छा, और सैफ अली, ये सारे जो है ऑनलाइन होके गायब हो जाते हैं, और याद रखिए इनकी अटेंडेंस नहीं लगती जो इस तरह गायब हो जाती है। अच्छा, मैं पेपर का बेटा मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने बेसिकली जो है ना ज़्यादा जो मैंने दिए हैं ना वो अटेंशन या ज़्यादा मार्क्स वो मैं दे रहा हूँ असाइनमेंट्स को, क्योंकि मेन काम जो है वो तो जो आपने असाइनमेंट्स करनी है ना उसको, इसलिए पेपर का मैं सोच रहा हूँ कि पेपर का मैं थोड़ा इसको कम कर दूंगा, और मेन जो होगा वो आपकी असाइनमेंट का जो पोर्शन हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे पेपर बेटा वही होगा जो हमने केसेस किए हैं, जो हमने चीज़ें की हैं, तो उसी तरह पेपर में आएंगे। जिस तरह क्विज में आपने देख लिया है कि जस्ट आपने जो क्लास में किया है जस्ट वो तो उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, लेकिन क्योंकि ये C5 लेवल का हमारे सब्जेक्ट है तो इसलिए आपने जो है वो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके चीज़ों को करना है। जो केस आएगा थोड़ा सा दूसरा मैंने भी कह रहा है कि पेपर में आ सकता है कि इसको नॉन आइसोथर्मल के लिए सोल्व करें। ठीक है, या पेपर में मैं इस केस को दे सकता हूँ कि डिफ्यूजन को इनफाइनाइट कंसीडर कर लें, जैसे हमने रिएक्शन काइनेटिक्स को भी इनफाइनाइट लिया था, तो डिफ्यूजन को भी इनफाइनाइट लें तो क्या होगा। तो इस तरह का जो है थोड़ा सा सीन होगा पेपर में। सर टोटल कितने पेपर क्वेश्चंस क्लोज होंगे? बुक की होगा? बेटा पेपर क्लोज बुक होगा, अभी तक तो मेरा यही ज़हन है। सर टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? जी बेटा, मैंने कहा टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? टोटल बेटा इनफाइनाइट हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कौन सा फिनोमिना, कौन सा मूड जो है डोमिनेट होता है। कोई इनफाइनाइट क्वेश्चन देने का अगर डोमिनेट हो गया तो हम इनफाइनाइट दे देंगे। वैसे तो सर तीन बन सकते हैं, तीन जो हमने पार्ट पढ़े हैं। हाँ वैसे हाँ, आपने मुझे याद करा दिया कि क्योंकि हमने बेटा वो भी जो पिछला भी तो करना है ना, तो तीन तो नहीं, हाँ अगर तो पिछला भी शामिल हुआ 7 तो बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे, 6 से 7 क्वेश्चन हो सकते हैं। जी बेटा, जी थोड़ा सा सिलेबस कम कर दें सर प्लीज़, मिड वाले से कर दें, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, सारे सब्जेक्ट्स का यही हाल है सर, इतना सर। वो बेटा मेरी ये डोमेन में यार है नहीं ना, क्योंकि हमने तो आपकी जब आपके एक्रीडेशन हो चुकी है, आपका जो अभी हमारा जो पीसी का विजिट हुआ है सर, पता नहीं सर, आप लोगों का सेशन नहीं ना हुआ अभी, वो 16 हो गया, 16 वाले हो गए हैं, आपको पीसी का नंबर मिलना है। तो जब पीसी वालों को बुलाना होता है बेटा तो हमने सारे सब्जेक्ट की जो होती है वो फाइल दिखानी होती है, फिर वो जो पेपर बने होते हैं वो भी इनको दिखाने होते हैं, तो उसमें हमने वो शो नहीं करना कि इनका पेपर लिया गया है। तो सारी चीज़ें जो होती हैं उसकी बेटा क्योंकि ओपी है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो इस तरह का यानी कि सिलसिला जो है बड़ा अपना थोड़ा कम्प्लेक्स होगी ये चीज़ें, तो इस तरह शायद कोर्स कम करना शायद पॉसिबल ना हो, सारा इंक्लूड करना पड़ेगा, पेपर लेना पड़ेगा, पेपर चेक करके वो सारे हमें किसी को दिखाने होते हैं। ठीक है सर। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन इसके अलावा?